So welcome to the students. Yesterday what we have done this rectangular fillet well when it is subjected to the torsion, and the second case I have taken the circular shaft when it is also subjected to the torsion, right? So today my lecture is that is the rectangular fillet well subjected to the bending, right? क्या है हमारा rectangular fillet. This is the second case, you can say, rectangular fillet well subjected to the bending. तो कल हमने किया था rectangular fillet well subjected to the torsion, and today I will take this case rectangular fillet well subjected to the bending. तो देखिए, suppose this is your sport. This you can say this is your sport, right? And so this is we are considering here the cantilever beam. We are considering here the cantilever beam. सो क्या करें यहाँ पे कंसिडर, इससे करें थे कंसिडर. So this is your cantilever beam. We are considering the cantilever beam here, and that you can say that is the weld size. Right. So this is your, और अगर मैं इसको this is your axis, ये आपका क्या है, this is your axis, and here this is your center of gravity G. The force P is acting on the cantilever beam at its one end. The force P is acting, and it is welded with the support. You can say this is what? This is the support. So it is welded with the support. तो अगर मैं इसका दूसरा व्यू देखूं इस तरीके से, तो क्या व्यू आएगा इसका? सपोर्ट को आप ऐसे लिख लीजिए. It is welded with the support like this. So if I will draw the another view, so its view is like this. Right? So its view is like this. This you can say. And these are your well. अगर हम इस तरीके से इस व्यू में देखें, ये वेल्ड आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, बिकॉज दिस इज द कैंटिलीवर बीम हियर. सपोज दिस इज योर स्पोर्ट एंड दिस इज योर कैंटिलीवर बीम. ये स्पोर्ट है और ये आपकी कैंटिलीवर बीम है. तो इसमें क्या होगा कि जे वाला एज और जे वाला एज आपका इस तरीके से इसके साथ बेल्ट किया है, एंड द फोर्स पी इज एक्टिंग हियर, और जो फोर्स पी है वो इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है, राइट? तो सो दिस फोर्स पी दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बेल्ट,
here in this case you will find that force P that is parallel to the axis of the belt. So you can say, suppose if I say this is the length L and this length of the belt, you can say this is the length L, right? And this is your thickness T. अगर मैं जहां की बात करूं तो this is your thickness T, like this, right? So this is your thickness, L is the this, and here in this case, this is your center of gravity, right? So this is the size of the belt from here to here or here to here. This is the size of the belt. So this is about the diagram which I have shown here, that this is the cantilever beam, and the cantilever beam is fixed with the support, right? Is fixed with the support. The load P is acting at this distance, and the distance of the load P from the center of gravity, this is equal to E. So this is, you can say this is equal to E. So this is your complete diagram. So what we have to find out, that is the rectangular fillet belt subjected to the bending, right? Suppose if I say that L is the length of the belt, H is the size of the belt, and T is the minimum throat thickness, you can say minimum throat thickness. So T is the minimum throat thickness, right? So when this load P is acting on the cantilever beam, तो ये जो इसका बेल्ट होगा, if you will see that this load P that is acting parallel to the axis of the belt, that is acting parallel to the axis of the belt, and when the load is acting parallel to the axis of the belt, so then you can say जो आपका shear stress मिलेगा यहाँ पे, direct shear stress, जहाँ पे जो load P से, due to the load P, what type of the stress we will get? We will get the direct shear stress, because the load P that is parallel to the axis of the belt, right? And when the load, you can say when the load P is parallel to the axis of the belt, so what type of the movement that will generate in the belt? You can say what type of the movement, the load P that will generate in the belt, the movement is bending movement. ये मैंने कल भी आपको बताया था, क्या बताया था आपको कि when the load is acting on the normal axis, right? When the load is acting on the normal axis of the belt, then the movement is created. जो आपका movement होगा, that will be the torsion movement. And when the load is acting parallel to the axis of the belt, at that time the movement which is created there, the movement which is dwelt there, that is the bending movement, right? You understand this? तो आप कह सकते हैं, suppose let so यहाँ पे क्या है, L is the length of the belts. ये दोनों जो welds है, they are having the equal length. When the two welds are having the equal length, it means that the center of gravity of this that lies on the axis of the axis of this beam. ये जो beam का जो axis होगा, central axis होगा, that will lie on this. So L is the length of the belt. T आप कह सकते हैं minimum. T is minimum thickness. T is minimum thickness, और इसको हम ये भी बोलते हैं throat thickness. T is the minimum thickness और throat thickness. T small t डालिए आप, small t. H is the size of the weld. So these are the three parameters here. Now the condition is क्या है? The load P which is acting at a distance E from the center of gravity or from the centroid. कितने distance के ऊपर है? Its distance is E from the centroid. So load is acting at this. So due to this load P, what happens?
तो ड्यू टू दिस लोड P, ये जो लोड होगा ड्यू टू दिस लोड P, ये जो आपका लोड है P, इससे आपको क्या मिलेगा? First you will just do the same thing, transfer the load P at the centroid of this. जैसे मैंने पहले आपका केस किया था, क्या करें? लोड P को क्या करें? इसमें इधर ट्रांसफर कर दें, इस पॉइंट के ऊपर, सेंट्राइड के ऊपर लोड P को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? जो एक आपको जहां पे सेंट्राइड पे एक लोड मिलेगा, जस्ट लाइक दिस लोड P, राइट। और एक आपका क्या होगा? एक आपका जहां पे मूवमेंट क्रिएट होगा, एक आपका जहां पे मूवमेंट क्रिएट होगा। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट transfer the load P on the centroid, and at the point G we will get one load that is acting in the downward direction and one moment M that is dwelt here. अब देखिए ये जो लोड P है, that due to this load P, what you will get? You will get the shear stress. Why? Because this load is parallel to the axis of the bed, so you will get the shear stress. आप कह सकते हैं direct, you will get the direct shear stress. तो एक चीज हमें लोड से क्या मिला? डायरेक्ट shear stress. एंड डायरेक्ट shear stress किसके बराबर होगा? दैट इज टाउ. दिस इज इक्वल टू लोड P अपॉन मिनिमम थ्रोट एरिया, लोड P डिवाइडेड बाय द थ्रोट एरिया, डिवाइडेड बाय द थ्रोट एरिया. तो आप कह सकते हैं थ्रोट एरिया. थ्रोट एरिया क्या होगा? मिनिमम एरिया. तो जहां पे आपको मिलेगा टाउ 1 मैक्सिमम. क्या मिलेगा? थ्रोट एरिया. थ्रोट एरिया, व्हाट इज द थ्रोट एरिया? वेयर द थिकनेस इज मिनिमम. सो T इज द मिनिमम थिकनेस. So at this point where the thickness is minimum or the area is minimum, stress is maximum. So maximum stress we will get this, and this is equal to P is the load, right? So what is this? T is the minimum thickness. क्या है आपकी? T. L is the length. Now there are the two welds here. तो ये क्या आ जाएगा? 2 into T into L, right? So this is the direct shear stress which we'll get here. ये direct shear stress हमें मिल गया tau 1, right? अब देखिए we will get the direct shear stress. अब due to the movement M, अब मुझे बताइए यहां पे क्या होगा? Load is acting parallel to the axis of the belt. Try to understand this point. Load is acting पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बेल्ट. और जैसे मैंने आपको बताया कि जब लोड आपका पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैरेलल जो जब आपका लोड जो है पैरेलल एक्सिस के ऊपर एक्ट करेगा, जब पैरेलल एक्सिस पर एक्ट करेगा तो क्या होगा? वहां पे कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी? वहां पे बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी. और मूवमेंट कौन सा होगा? बेंडिंग मूवमेंट होगा. तो इस केस में आपका क्या होगा कि बेंडिंग स्ट्रेस होगी. जो बेंडिंग स्ट्रेस है दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस. बेंडिंग स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस आल्सो. तो इस केस में जो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस होगी, ये पहला आ गया ड्यू टू द लोड, दिस लोड P, एंड आल्सो ड्यू to the movement P into E, due to the movement P into E, so due to the movement, जो आपका मूवमेंट था P इंटू E, राइट? तो ड्यू टू द मूवमेंट P इंटू E क्या होगा? क्योंकि एक हमारा क्या था, जहां सेंट्राइड के ऊपर जब मैंने शिफ्ट किया, वन इज लोड एक्टिंग P और अदर इज द मूवमेंट. और मूवमेंट क्या है? मूवमेंट क्या है? सो दिस फोर्स एंड द दिस डिस्टेंस, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस P इंटू E.
तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं मूवमेंट जहां पे लिखूं तो मूवमेंट आपका क्या होगा, P into E, राइट. So you can say also due to the movement P into E, or you can say M, right. So कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, बेंडिंग. सेकंड क्या है, you will get the bending, you will get the bending stress. कौन सा होगा, बेंडिंग स्ट्रेस. एंड or you can say normal stress. बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है. बेंडिंग स्ट्रेस और normal stress, that is sigma. क्या प्रोड्यूस होगा, बेंडिंग स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, that is sigma B. that stress, this is due to the this stress that is due to the बेंडिंग मूवमेंट. यू अंडरस्टैंड दिस. ये जो मूवमेंट जहां पे क्रिएट होगा, कौन सा मूवमेंट होगा, बेंडिंग मूवमेंट होगा. और बेंडिंग मूवमेंट से हमें क्या मिलेगा, बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगी. और बेंडिंग स्ट्रेस आपकी है सिग्मा बी. अब देखिए पॉइंट देखिए, अब जहां पे हमें वी डोंट हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दीज स्ट्रेसेस. इनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है. व्हाई, बिकॉज द स्ट्रेसेस, दैट इज दिस इज द shear stress, direct shear stress, and this is the bending stress. So these two stresses, whatever you are getting here, that is the shear stress and the bending stress, these two stresses are acting on the different plane. They are not acting on the same plane. You understand this? They are not acting on the same plane because ये जो normal stress है, ये आपका किसके ऊपर एक्ट करता है, normal axis के ऊपर. और जो आपका shear stress है, that will act on the parallel axis. ये normal axis, ये parallel axis. So these two stresses, they are on the different plane, they are not on the same plane. So we will not add these stresses, you can say vectorially. अगर हमें टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट करना होता, जैसे पहले केस में था, we have got tau 1 and tau 2, और जो टोटल स्ट्रेस था, we added that stress vector by the vector way, vector method, ठीक है ना. Vectorially we have added, but here we don't have to add, we cannot add these two stresses because both the stresses are different and both are acting on the different plane. So there is no need for calculating the direction as we have done in case of the rectangular fillet weld when it is subjected to the torsion. जब torsion के केस में हमने किया था तो we have क्या किया था, हमें डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के बाद हम उसको क्या कर सकते थे, वी कैन ऐड इट. क्योंकि उस केस में एक तो आपका डायरेक्ट shear stress प्रोड्यूस होता था और साथ में ड्यू टू मूवमेंट क्या प्रोड्यूस होता था, दैट इज द टॉर्शनल shear stress, राइट. सो एट दैट केस यू कैन से दैट टाइम these two stresses, they are acting on the same plane, so we needed to calculate the direction of the stresses which is in that case we got. But here you have seen, क्या देखा आपने, ये दोनों स्ट्रेसेस जो हैं दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट प्लेन. एक स्ट्रेस आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है और एक स्ट्रेस आपकी नॉर्मल प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही है. सो वी विल नॉट फाइंड आउट द डायरेक्शन. यू अंडरस्टैंड दिस. हमें इस केस में डायरेक्शन क्यों फाइंड आउट नहीं करनी है, क्योंकि दीज टू स्ट्रेसेस दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट प्लेन. यू अंडरस्टैंड दिस. अब देखिए तो जो सिग्मा बी होगा, व्हाट इज द बेंडिंग स्ट्रेस. सो बेंडिंग स्ट्रेस हमें मिलेगी सिग्मा बी. तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, सिग्मा बी. अगर जो आप बेंडिंग इक्वेशन है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सिग्मा बी, अगर सिग्मा बी मैक्सिमम की बात करता हूं मैं, तो ये आपका आएगा m इंटू वाई मैक्स अपॉन आई. यू अंडरस्टैंड दिस, राइट. ये इक्वेशन यूज कीजिए ना, जहां पे सिग्मा बी अपॉन वाई दिस इज इक्वल टू m अपॉन आई, राइट. सो देयरफॉर सिग्मा बी m into y upon I. You understand this? So sigma b bending stress, this is equal to m into y max upon I. We have to calculate the magnitude of this. जो पहला मैग्नीट्यूड था डायरेक्ट shear stress का, that I have calculated. Now I have to calculate the magnitude. तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए m की वैल्यू तो हमारे पास है, that is p into e.
जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसमें लोड आपको दिया होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम लोड टू द सेंट्रॉइड, दैट डिस्टेंस विल आल्सो बी गिवन टू यू. फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द मूवमेंट, दैट इज m इज इक्वल टू p इनटू e. नाउ y max वी हैव टू कैलकुलेट. तो देखिए y max कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मिटा देते हैं. तो अब देखिए वाई मैक्स की बात करते हैं. हमें क्या चाहिए, वाई मैक्स चाहिए. इफ यू विल फाइंड हियर, तो वाई मैक्स देखो जहां से लेके फ्रॉम बॉटम एज टू द सेंट्रॉइड द डिस्टेंस इज वाई आई हैव टेकन, एंड फ्रॉम दिस टॉप एज टू द डिस्टेंस up to this centroid, the distance is y. So these distance of the belt from the centroid, y is the distance of the upper belt का जो bottom edge होगा वहां से centroid तक, और ये जो y है जो लोअर इसका लोअर बेल्ट है उसका जो टॉप एच है वहां से लेके सेंट्रॉइड तक, राइट. लेकिन जो बाई मैक्सिमम है, अगर मैं बाई मैक्सिमम की बात करूं, इसको मैं एक सेपरेट करके बड़ी फिगर बना लेता हूं. सपोज ये आपके दो बेल्ट हैं, दीज आर टू बेल्ट्स, राइट. ये आपके दो बेल्ट हैं, दीज आर टू बेल्ट्स. सपोज दीज आर टू बेल्ट्स, राइट. ये बेल्ट वन, तो लेंथ दोनों का सेम है. ये आपका सेंट्राइड है, ये मैंने पॉइंट आपका जी निकाला, राइट. दिस इज अ सेंट्राइड. जो बाई मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, ये आपका टी है, ये आपका टी. यू अंडरस्टैंड, दैट इज द मिनिमम थिकनेस. तो अगर बाई मैक्स की बात करूं तो बाई मैक्स आपका होगा जहां से लेके जहां तक जो होगा, दिस इज बाई मैक्सिमम, राइट. एंड जहां से लेके जहां तक जो होगा वो बाई मैक्स होगा. यू अंडरस्टैंड दिस. बट आई एम नॉट टेकिंग बाई मैक्स फ्रॉम हेयर टू हेयर. वाई? बिकॉज जो मैंने पहले आपको डेरिवेशन करवाया था उसमें कहा था कि ये जो थिकनेस होगी, द थिकनेस टी, दिस इज कॉल्ड द मिनिमम थिकनेस, दैट इज द थ्रोट थिकनेस, एंड दिस थिकनेस इज वेरी 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 स्मॉल देन वन. यस, ये थिकनेस जो है वन से हम बहुत ज्यादा इसको स्मॉल कंसिडर करते हैं. सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी डोंट कंसिडर दिस थिकनेस हियर. हम इसकी थिकनेस को क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करेंगे. वी विल नॉट कंसिडर द थिकनेस. वी जस्ट से कि वी विल टेक द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो ये जो आपका बाई होगा और ये जो आपका बाई होगा, मैं इसी को ज्यूम करूंगा बाई मैक्स. यू अंडरस्टैंड दिस, यू अंडरस्टैंड दिस. मैं दोनों केसेस में जहां पे तो मैंने काफी बड़ा ड्रा किया है बेल्ट आपको शो करने के लिए, बट जो बेल्ट की थिकनेस है दैट यू कैन से दैट इज वेरी वेरी स्मॉल. द थिकनेस ऑफ द बेल्ट इज वेरी वेरी स्मॉल. यू कैन से वेरी वेरी लेस देन वन. सो आई एम जस्ट इग्नोरिंग द नेग्लेक्टिंग द थिकनेस ऑफ द बेल्ट. मैं बेल्ट की थिकनेस को जहां पे क्या कर रहा हूं, नेग्लेक्ट कर रहा हूं, एंड आई एम जस्ट टेकिंग दैट बाई मैक्स फ्रॉम हियर टू द लोअर एज. सो यू कैन से जहां पे जो मैं कंसिडर कर रहा हूं वो आपका बाई इज इक्वल टू वाई मैक्स. यू अंडरस्टैंड दिस. ये पहला स्टेप आपको समझ आया. मैं बाई को वाई मैक्स क्यों कंसिडर कर रहा हूं, वाई आई एम कंसिडरिंग दिस, वाई इज इक्वल टू वाई मैक्स, बिकॉज द थिकनेस ऑफ द बेल्ट that I am taking as a very very small. So I am neglecting the thickness of the belt and assuming that y max that should be equal to y. I am just taking y max that is equal to y. ये आपका क्लियर हो गया. Now you come to this moment of inertia. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया.
सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा? व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? जस्ट देखिए, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जस्ट देखें, अब हमारा गया कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इसको मिटा देते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ दिस। तो देखिए, दोबारा इसके डायग्राम बनाएंगे, इधर बना लेते हैं। So these are the two wells. Suppose these are the two wells. So these are the two wells. ये आपकी क्या है? ये belts हैं आपके, ये welding है। These are the two wells and having the length L. इनकी क्या है? ये लेंथ दोनों की, कितना है? This is the L length and this is L. You understand this? This is your center of gravity G, right? ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि B बाई डिस्टेंस क्या होगा, जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है दिस इज बाई, और जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है दिस इज बाई। यू अंडरस्टैंड? T इज द थिकनेस ऑफ द बेल्ट, राइट? ये मैंने सेपरेट आपको बना के दे दिया। तो इसका, इस प्लेट की बात करूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे होगा सेंटर में, और जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो यहां से होगा, राइट? सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट क्या करूंगा मैं? फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बेल्ट अबाउट G1, ठीक है? तो पहले क्या करूंगा, पहला स्टेप क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेल्ट 1, इसको बेल्ट को मैं 1 रख लेता हूं, बेल्ट 1 अबाउट G1, बेल्ट 1 अबाउट G1। इसका जो सेंट्राइड होगा दिस इज एट दिस पॉइंट। अगर आपने सेंट्राइड का चैप्टर पढ़ा है तो दैट यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, राइट? अब देखिए, L इज द लेंथ एंड T इज दिस। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG1 की बात करूं, राइट, तो क्या होगा? ये जो फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो आपने पढ़ा है, BD⁴/12 अबाउट x एक्सिस, along x axis, about x axis जो होगा BD⁴/12, where V is the width and D is the height, right? V is the width and T is the height। तो इस केस में width क्या है? L, तो ये हो गया L इंटू हाइट क्या है? T, मिनिमम थिकनेस TQ/12। यू अंडरस्टैंड दिस? ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन बेल्ट। सो यू आर हैविंग the two belts here and the length of the belt in both the case is same, length is same, thickness is same,
So it means that the moment of inertia of this well about G1, so the same is the moment of inertia of this well about G2, right? इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक दूसरे से सेम होगा. तो हम क्या करेंगे, एक का निकालेंगे बाय 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. यू अंडरस्टैंड. तो आईजे में मैंने निकाल लिया. अब है सेकंड इसमें मोमेंट ऑफ inertia, moment of inertia about the centroid J. Moment of inertia about the centroid G. तो J निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, we have to use the parallel axis theorem. यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. इस केस में क्या करें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करें. सो आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल बॉडी अबाउट द सेंट्रॉइड जी. क्या होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस इज इक्वल टू आई G1 प्लस आई G1 प्लस एरिया इंटू y1 का होल स्क्वायर, सॉरी नॉट y1, G1 का होल स्क्वायर इंटू G1 का होल स्क्वायर, G1 का होल स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन. इसका क्या मतलब हुआ कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्राइड G क्या होगा, this is equal to the moment of inertia of this plus area of the belt and G1 this distance G1 from here to here we have to take the distance. Same case is there because I am just ignoring the thickness of the belt here because the thickness of the belt is very very small. तो मैं जो G1 डिस्टेंस होगा आई विल टेक फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड दिस इज इक्वल टू y. यू अंडरस्टैंड दिस. ये जो G1 डिस्टेंस है, आई विल इग्नोर दिस डिस्टेंस. आई एम नॉट टेकिंग, आई एम जस्ट टेकिंग द डिस्टेंस G1. दिस इज इक्वल टू आई एम जस्ट टेकिंग द डिस्टेंस y and y is equal to G1. Reason is because the thickness I am considering here, the thickness is very very small, so I am neglecting the thickness and I am just taking the distance G1. This is equal to y. तो ये आपका आ गया. आप देखिए आगे. तो ये हो गया एक का, तो जो टोटल होगा ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वी आर हैविंग द 2 वेल्ड्स हियर. तो ये था वन वेल्ड का IG1 प्लस AG1 का होल स्क्वायर. एंड इन दिस केस यू नो द लेंथ ऑफ द वेल्ड इज सेम, द थिकनेस ऑफ द वेल्ड इज सेम. इट मीन्स दैट the area of the weld is also same. So whatever the moment of inertia of this weld, the same amount the moment of inertia of this weld. So for calculating the whole moment of inertia, this equation first I have taken, that is for one weld, then I am multiplying it by 2 and this is your equation. You understand this? अब देखिए इसमें क्या करना है, only you have to substitute the value. इसको मिटा देते हैं, right? अब देखिए I, तो I क्या आएगा, 2 को यहीं पे रहने दीजिए. तो IG1 का पुट कर लीजिए आप L इंटू TQ बाई 12 प्लस what is the area? What is the area of this? Area is L into T. L is the length, T is this. L into T, right? And what is G1? That is Y square. You understand this? G1 जैसे मैंने आपको बताया, G1 किसके बराबर में ले रहा हूं? I'm just taking it is equal to Y because I'm not considering the thickness of the belt. I'm just taking the thickness of the belt is very small.
तो जे आपका आ गया, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, आई इज इक्वल टू ये 6 जे आ गया एल इंटू टी यू वाई 6, अब 2 इसको इधर ही रहने देते हैं, सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं, प्लस 2 इंटू एल इंटू टी प्लस 2 वाई स्क्वायर, राइट। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए एल टी क्यू वाई 6, जहां पे टी क्या है, टी इज वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन से टी इज वेरी स्मॉल, this is not plus 2L, सॉरी ये 2 से सीधा मल्टीप्लाई हुआ 2LT वाई स्क्वायर, राइट, ये आएगा 2LT वाई स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए मैंने आपको बताया just what we are assuming here, the thickness is very 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 small and I am ignoring, I am neglecting the thickness here, right, because this is very, तो अगर ऑलरेडी थिकनेस वेरी स्मॉल है तो उसका टी क्यूब जो होगा, थिकनेस का जो क्यूब होगा दैट इज वेरी वेरी लेस, वो उससे भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका है ये वाला टर्म, इसको मैं टोटली नेग्लेक्ट कर देता हूं, we don't require this is equal to 0, I will just consider this is equal to 0, reason is that I am taking the thickness is very very small and when the thickness is very very small तो it means that इसका जो क्यूब होगा वो क्या होगा, और भी ज्यादा स्मॉल होगा, तो इसलिए मैं इसको नेग्लेक्ट करूंगा, इग्नोर करूंगा। तो अब हमारा जो आई की वैल्यू है, जो हमारी आई की वैल्यू है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस केस, सो आई की जो वैल्यू है दैट इज 2 इंटू एल इंटू टी इंटू वाई स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड दिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आ गया, राइट। और अब हमारा बेंडिंग स्ट्रेस क्या आएगा, सिग्मा बी क्या आएगा, व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस, एम इंटू वाई अपॉन आई, राइट, यही है ना आपका फार्मूला। तो इसमें पुट कर लो सारी वैल्यू एंड यू विल गेट दिस। सो व्हाट इज एम, एम क्या है, P इंटू ई, सो दिस इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू वाई, अंडरस्टैंड, एंड व्हाट इज योर आई, 2 इंटू एल इंटू टी इंटू वाई स्क्वायर, तो जे और जे कैंसिल हो जाएगा, ये जो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा बी, दिस इज इक्वल टू पी इंटू ई अपॉन 2 इंटू एल इंटू टी इंटू वाई, राइट। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस आपका आ गया। शेयर स्ट्रेस आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, बेंडिंग स्ट्रेस यू हैव गॉट दिस। तो हमारे मुझे बताइए जो जहां पे होगा, जितने भी बेल्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जी, आपका निकाल लिया अपने सिग्मा देश, जितने भी बेल्ट आपके होंगे दैट यू नो, इनके सब डिजाइन की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी आपके फिलेट बेल्ट हैं, पैरेलल फिलेट बेल्ट है, सिंगल बेल्ट, पैरेलल फिलेट बेल्ट है, डबल है, ट्रांसवर्स है, तो जितने भी फिलेट बेल्ट है ये आपके जो फेल होते हैं ड्यू टू द शेयर। सो ऑल यू कैन से ऑल द fillet valves fails due to shear। सो इसका मतलब है हमें मैक्सिमम shear स्ट्रेस निकालनी है, तो मैक्सिमम shear स्ट्रेस हमारी क्या होगी, सो मैक्सिमम shear स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू व्हाट इज, जब आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस दिया हो तो क्या फार्मूला होता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का 1/2 रूट ऑफ सिग्मा बी होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। सो दिस इज योर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, यू कैन कैलकुलेट बिकॉज यू हैव कैलकुलेटेड द सिग्मा बी, you have calculated the tau, that is why the direct shear stress,
And now if you want to calculate the tau maximum, so tau maximum you can calculate by using this relation. Even you can also calculate the sigma maximum. तो sigma maximum क्या होगा? This is sigma b by 2. अगर सिग्मा b by 2 अगर अपना सिग्मा मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन कैलकुलेट. दैट इज सिग्मा b by 2 प्लस सिग्मा b होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, राइट. तो ये आप इस केस में अगर आपको सिग्मा मैक्सिमम कोई न्यूमेरिकल में दिया, क्वेश्चन में दिया है कि यू विल फाइंड आउट द सिग्मा मैक्सिमम, देन यू कैन यूज दिस रिलेशन. एंड ये जो टाउ मैक्सिमम है ये किस लिए निकालना जहां पे जरूरी है, क्योंकि जितने भी फिल्ड वेल्ड हैं आपके वो आपके शेयर में फेल होंगे, तो ये टाउ मैक्सिमम इस तरीके से निकालेंगे. यू अंडरस्टैंड? नाउ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट दैट द रेक्टेंगुलर फिलेट वेल्ड subjected to the bending moment. In that case, how we have calculated, what we have done, what our steps, जहां पर भी सेम था. एक फोर्स P जो है at a distance E from the centroid that is acting on the cantilever beam. You understand this? ध्यान से सुनिए. एक फोर्स P is acting on the cantilever beam at a distance E of the centroid and the cantilever beam is fixed with the system. ये सिस्टम है, इसके साथ इसको फिक्स किया है. यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये जो लोड P जहां पे एक्ट करेगा इससे हमें क्या मिलेगा? हमें दो चीजें फाइंड आउट होंगी. एक तो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस वी विल गेट, और दूसरा हमें क्या मिलेगा इस केस में? बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा, राइट. क्योंकि जहां पे मूवमेंट भी क्रिएट होगा, व्हेन आई विल ट्रांसफर द लोड फ्रॉम P टू दिस पॉइंट एट द सेंट्राइड, तो क्या होगा? एक जो लोड P है दैट विल एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस मिलेगी. दैट इज इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन 2T इंटू L. यू अंडरस्टैंड दिस? T इंटू L दैट इज द मिनिमम एरिया एंड 2 मीन्स देयर आर द 2 बेल्ट्स. तो हमें डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस मिलेगी. दैट डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट. नाउ इस केस में बैंडिंग स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होगा या बैंडिंग मोमेंट कैसे होगा? क्योंकि जो हमारे बेल्ट हैं, ये जो हमारी फोर्स जो है P दैट इज एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बेल्ट. हियर दिस फोर्स P इज एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बेल्ट. और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई फोर्स जो है पैरेलल एक्सिस के पैरेलल एक्ट करेगी तो वो क्या करेगी? एक मूवमेंट क्रिएट करेगी, और उस मूवमेंट को कहेंगे हम बेंडिंग मूवमेंट, राइट. तो वो बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट करेगी, और बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा इसमें? m इंटू E. m इज द मूवमेंट एंड E इज द डिस्टेंस, राइट. सो दिस इज द सॉरी नॉट m इंटू D, दिस इज P इंटू E. P इज द लोड एंड E इज द डिस्टेंस. दिस इज द बेंडिंग मूवमेंट. नाउ द क्वेश्चन इज shear stress we have calculated, the magnitude of the shear stress we have calculated. Now we want to calculate the magnitude of the moment, right. तो हमें moment तो हमने calculate कर लिया है. m is equal to P into E. So by using this bending moment equation, m upon I, this is equal to sigma B upon I. क्योंकि जब ये movement create होगा, इसमें जो important point है to understand, जब जहाँ पे bending moment create होगा तो क्या होगा? जहाँ पे bending stress, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी ड्यू टू लोड, और बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट, राइट. लेकिन जो बेंडिंग स्ट्रेस है दैट इज ऑन द नॉर्मल एक्सिस. बेंडिंग स्ट्रेस क्या है? नॉर्मल एक्सिस के ऊपर है. शेयर स्ट्रेस दैट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस. सो बोथ दीज यू कैन से स्ट्रेसेस दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट प्लेन. तो जहां पे हमें इनको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेसेस डिफरेंट प्लेन के ऊपर है. इसलिए इस केस में हम इसकी डायरेक्शंस को फाइंड आउट नहीं करेंगे. यू अंडरस्टैंड दिस? के ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है या किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. देयर इज नो नीड टू फाइंड द डायरेक्शन. तो अब उसके बाद क्या करेंगे? हमें टाउ निकालना है, ये सिग्मा निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है. वी विल यूज द रिलेशन m अपॉन I इज इक्वल टू सिग्मा B अपॉन y. Therefore, bending stress sigma B, this is equal to m into I upon y, right. तो by using this relation हम क्या करेंगे? हमारे पास m भी है, m into y upon I. m भी हमारे पास है, y भी हमारे पास है. Only we have to calculate. क्या हमें कैलकुलेट करना है? I करना है.
तो आई कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द आई, यू अंडरस्टैंड दिस। तो आई को ये तरीका है सेंट्राइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंट्राइड करना है, तो ये मैंने आपको कंप्लीट करके बताया। तो इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें एंड देन बाय पुटिंग दिस यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस। अब आपके पास सिग्मा बी भी मिल गया, टाउ भी मिल गया। और जो जहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना है कि जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, वेल्डिंग जॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे जॉइंट जो हमारे जो फेलियर है उनका वो क्या होता है, मैक्सिमम शेयरिंग होती है। फेलियर को हम ज्यादा कंसिडर करते हैं शेयरिंग में। तो इसलिए हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वी मस्ट नो व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ये जो आपका जॉइंट है इसको विथस्टैंड कर सकता है। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन आई हैव जस्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ये मैंने आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का, नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला दिया है, बट यू हैव टू कैलकुलेट दिस, राइट, यू अंडरस्टैंड दिस। जहां तक क्लियर है। अब हम सर्कुलर फिलेट बेल्ट के ऊपर आएंगे कि सर्कुलर फिलेट बेल्ट में जब बेंडिंग मूवमेंट होगा तो उस वक्त हमारा क्या रिलेशन होगा, हमें कौन सी स्ट्रेस फाइंड आउट करने पड़ेगी, ये हम उसके ऊपर नेक्स्ट हमारा जो है केस सेकंड है, दैट इज द सर्कुलर फिलेट बेल्ट सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मूवमेंट, राइट। तो इसको देखिए आप। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है सर्कुलर फिलेट वेल्व subjected to the bending moment। मैंने पहले करवाया था आपको सर्कुलर फिलेट वेल्व subjected to the torsion। Now the second one is I am just taking the circular fillet valve subjected to the bending moment. So you can say you are having a circular shaft that is fixed with the system. It is just like a cantilever beam you can say, right? तो ये cantilever beam है, एक end इसका fix है system के साथ and another end is free and it is a circular rod or circular shaft you can say, having the very small thickness you can say, right? So at this end you have seen the force P is acting at this end. At the free end you can say the force P is acting and the bending moment is there, movement is also acting on this। तो same procedure क्या है करते हैं हम इसको शिफ्ट करते हैं इधर के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। तो क्या होगा when we will shift it here, तो one force is acting P in the downward direction and one movement is there and here we are considering the bending moment, right? Here we are considering the bending moment here। तो आप कह सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। लेट तो शाफ्ट का डायमीटर क्या है, लेट डी इज द डायमीटर ऑफ, लेट डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। एच क्या है, what is that? That is the size of the leg of the belt। H क्या है, this is size of the leg of the belt and T is मैं ले रहा हूं, that is the minimum thickness और इसको आप बोलते हैं throat thickness। You understand this? So these are the things which I am taking here। अब देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि जहां पे क्या है सेम प्रोसीजर है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस, ओनली यू आर हैविंग द सर्कुलर शाफ्ट। और सर्कुलर शाफ्ट में क्या होगा, जो आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है दैट इज समवट डिफरेंट than that of the rectangular। This is only the difference here, otherwise everything is same। You understand this? So हर चीज जो आपकी सेम होगी, सिर्फ आपने
क्या है कि दिस इज अ सर्कुलर शाफ्ट, और सर्कुलर शाफ्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिफरेंट होगा, और जो रेक्टेंगुलर शाफ्ट थी उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपका डिफरेंट होगा. दिस इज ओनली द डिफरेंस, rest everything is same. So here you can say this is the force P which is acting here. If you will transfer the force P from here to here at this point, so what happens means at this point you will get the force P that is in the downward direction and the movement P into E. You will get the two things there when you will transfer the force from here to here at this point. तो क्या होगा, एक तो आपको इस पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा, सपोज ये आपका सेंट्राइड है, दिस इज योर जी, ये आपका सेंट्राइड है, तो यू विल गेट, एक तो आपको ये फोर्स मिलेगा P, और एक आपका जो होगा इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, मूवमेंट होगा M. यू अंडरस्टैंड दिस? तो जो आपकी फोर्स P है, फ्रॉम ड्यू टू दिस फोर्स P, सेम थिंग, सो ड्यू टू force P, what you will get? You will get the direct shear stress. Direct shear stress, you can say tau, and this is equal to what? ये क्या होता है, P upon load upon throat area, load upon throat area. You understand this? This is equal to load upon throat area. So this is a circular shaft. क्या है जी आपका सर्कुलर शाफ्ट आपका मिनिमम थिकनेस, सर्कुलर शाफ्ट आपका मिनिमम थिकनेस. तो इस केस में क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू पी, थ्रोट एरिया क्या होगा, पाई इंटू डी, डी इज द डायमीटर, पाई इंटू डी मीन्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस. दिस इज द यू कैन से थ्रोट एरिया. तो जो आपका आएगा पाई इंटू डी इंटू टी. यू अंडरस्टैंड दिस? वेयर बिकॉज टी इज द मिनिमम थिकनेस. तो इस केस में हमारा थ्रोट एरिया जो आएगा, लोड अपॉन थ्रोट एरिया, दिस इज अ सर्कुलर शाफ्ट, पाई इंटू डी, दिस इज द सर्कमफ्रेंस इंटू टी, दिस इज मिनिमम थिकनेस. सो सर्कमफ्रेंस इंटू मिनिमम थिकनेस, दिस इज द minimum area or throat area you can say. So you have calculate this shear stress. You understand this point? Pehla step is over. Now जहां पे ठीक है, तो दूसरा but we will calculate. अब due to this movement, ये जो आपका मूवमेंट होगा उसमें क्या होगा, आपको बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, because this is the bending moment, so you will get the bending stress here, right? इस केस में आपको क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगी. तो बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए but we will do, we know the, you can say ड्यू, सेकंड लिख लिए, ड्यू टू द मूवमेंट, जो हमारा मूवमेंट होगा ड्यू टू द मूवमेंट P into E, right? So due to the moment P into E, ये मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं. Due to the moment P into E, what you will get? The bending stress. So you get the bending stress, that is sigma B. Again the same process, same thing is there. Shear stress is acting on the horizontal plane, bending stress is acting on the normal plane, both are acting on the different plane. So we don't need to find out the direction of these two stresses. हमें इनकी डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि they are acting on the different plane and we will not add them. हमें उनको ऐड नहीं करना है. जो आपका डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस होगा उसकी वैल्यू को सेपरेट रखिए, जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा उसकी वैल्यू आप सेपरेट रखिए. अब देखिए जो बेंडिंग स्ट्रेस का है वो मैंने आपको बताया फार्मूला, जैसे पीछे अपने बहुत क्वेश्चन किए, m इंटू बाई अपॉन आई, राइट? सो दिस इज द रिलेशन ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस, m इंटू बाई अपॉन आई. तो बाई क्या है, बाई मीन्स बाई मैक्सिमम,
अगर हम बाई मैक्सिमम लेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस हमारा ये मैक्सिमम आएगा। यू अंडरस्टैंड दिस? अब देखिए इसमें एक और आपको फिगर ड्रा करके बता देते हैं। देखिए ये आपका था, सपोज ये सर्कुलर शाफ्ट का मैं प्लान लेता हूं। दिस इज योर सर्कुलर शाफ्ट, दिस इज द सर्कुलर शाफ्ट ऑफ द वेरी स्मॉल थिकनेस। सपोज ये आपकी स्मॉल थिकनेस थी, दिस इज ऑफ द ये थोड़ा सा ना अच्छा डायग्राम ड्रा नहीं हुआ, चलो अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपकी स्मॉल थिकनेस थी, सपोज दिस इज स्मॉल थिकनेस योर, आप कह सकते हैं टी इज द स्मॉल थिकनेस ऑफ दिस, राइट। ये सर्कुलर शाफ्ट है, इसकी स्मॉल थिकनेस है टी। अब देखिए इसका जो डायमीटर है वो क्या था, डी है, ये आपको पता है। अब बाई मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है। जो हमारा बाई मैक्सिमम होगा, अगर बाई मैक्सिमम की बात करूं, मींस बाई मैक्सिमम कहां से होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट होगा ये आपका होगा बाई मैक्सिमम। ये क्या होगा, बाई मैक्सिमम। आप कह सकते हैं बाई मैक्सिमम क्या होना चाहिए। सो देयरफॉर अगर इस डायग्राम की बात करें तो बाई मैक्सिमम इज इक्वल टू डी बाई 2 प्लस टी। यू अंडरस्टैंड दिस? बाई मैक्सिमम क्या होगा, डी बाई 2, डी बाई 2, जहां से लेके जहां तक इसका डायमीटर कितना है, डी है, तो जहां से लेके जहां तक डी बाई 2 प्लस टी इज द थिकनेस। यू अंडरस्टैंड दिस? बट as I told you, it is having a very small thickness, so I am ignoring the thickness here. I am not taking the thickness into consideration. So you can say कि इस केस में अगर मैं थिकनेस को, इस चीज को मैं कंसिडरेशन नहीं करता हूं, तो आपका जो बाई मैक्सिमम होगा, बाई मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू डी बाई 2। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बाई मैक्सिमम हमारा क्या आ गया, डी बाई 2। यू अंडरस्टैंड दिस? Because this circular shaft, this is having a very small thickness, and if I want to find out the y maximum, that is from the center to the complete center, d by 2 plus t, d by 2 diameter, d by 2, that is the radius, you can say radius of this, plus t, t is the thickness, but here I am not considering the thickness here, so this is y maximum is equal to d by 2। अब देखिए अब क्या करना है, जहां तक I की वैल्यू है, I की वैल्यू भी आप जानते हैं, ये पीछे भी मैंने आपको बताया था। सो I दिस इज इक्वल टू पाई इंटू डी क्यू, पाई इंटू डी क्यू इंटू टी अपॉन 8। दिस इज इन केस ऑफ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ नेग्लेजिबल थिकनेस। यू अंडरस्टैंड? ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, इसे आप इस तरीके से याद कर लीजिए, बिकॉज हमें ये सिर्फ जहां पे पुट करना है, जो न्यूमेरिकल निकालना है वो डिफरेंट। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, जैसे मैंने मूवमेंट ऑफ अपोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको करके बताया था, दैट आई कैन डू बाय टेकिंग द सेम थिंग। जैसे वहां पे आर स्क्वायर इंटू डी ए था, तो जहां पे क्या होगा, इस केस में क्या होगा, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वाई स्क्वायर इंटू डी ए, इंटीग्रेशन, राइट, फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो सेम करके तो यू विल गेट दिस रिलेशन, पाई इंटू डी क्यू इंटू टी अपॉन 8। और अब आपका सिग्मा बी आ गया, एम क्या है, पी इंटू एम, आपका पी इंटू ई, ये आपको दिया होगा, लोड की वैल्यू दी होगी, डिस्टेंस ऑफ द एसेंट्रिसिटी दिया होगा। जब आप न्यूमेरिकल निकाल लेंगे तो मूवमेंट आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। बाई मैक्सिमम क्या लेंगे हम, डी बाई 2, सर्कुलर शाफ्ट ऑफ द नेग्लेजिबल थिकनेस, बाई मैक्सिमम इज दिस, एंड आई इज इक्वल टू पाई इंटू डी क्यूब इंटू टी अपॉन 8। यू अंडरस्टैंड दिस? इसमें देख लो क्या क्या कैंसिल होता है आपका।
तो सिग्मा बी तो सिग्मा बी सिग्मा बी, ये 4 ऊपर चले जाएगा, 4 इंटू पी इंटू ई अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू टी। सो दिस इज योर सिग्मा पी, राइट। और अगर आप टी की वैल्यू यू नो, मिनिमम थिकनेस क्या होता है, जैसे थ्रोट थिकनेस क्या होता है, टी यू नो दिस इज 0.707 इंटू एच मीन्स size of the leg, the actual thickness, h you can say this is the actual thickness. So t निकालना हो आपको, पीछे आप सारे लेक्चर्स पढ़िए, you can come to know, you will come to know this thing, 0.707 into h। तो ये आप अपने कैलकुलेट कर लिया सिग्मा बी, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द सिग्मा बी। अब आगे इसमें क्या करेंगे, ये आपका हो गया सर्कुलर फिलेट वेल्ड सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मूवमेंट, यू अंडरस्टैंड दिस। तो आज हमारा ये जो टॉपिक था, ये आपका टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम करेंगे, एप्लीकेशंस इसकी करेंगे, तभी आप इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये सारे जितने भी केसेस मैंने करवाए हैं, उन सभी केसेस की मैं एक एक दो दो प्रॉब्लम्स करूंगा। शायद उसके लिए मुझे 2 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम दूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट। सो दिस इज द, यू कैन से, कंप्लीट कंसेप्ट व्हिच आई हैव गिवन, दैट इज द डिजाइन ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट। नाउ आई विल टेक अप सम प्रॉब्लम्स, राइट। नेक्स्ट लेक्चर इज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ दिस, तो जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, so that you must know how we are implementing this and what sort of the important problem you can get in the UPSC examination, in GATE examinations, ESC examinations. So कुछ important problems हम करेंगे, so that you must have the your concept that should be clear, right? Thank you very much.